Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. I hope you all are very good in health and in mental peace. And let's start the study. And I hope that you are doing the revision as well as the practice questions I'm giving you as a homework. All right. So what we will be doing, we will be covering 6th, 7th, and 8th Olympiads, NTSC, NSE, JS, PRMO, and your school examinations. So I would recommend strongly that you should do the homework so that you will be able to calculate questions very fast. All right. Now, if you want any DPP and study material related to the your classes, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? You can go on the Telegram app and then you can write the Telegram code that is TTP07 for class 7 और किसी भी क्लास के लिए वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग अपना कोड लिखकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं and then you can access the DPPs and study material. Now, the important thing I wanted to tell you is a very good thing. If you really serious for cracking any exam, then you must do it. You have to go on this website www.talkingtextbooks.in and then you have to look out for such packages. इस तरीके के पैकेजेस आपको मिलेंगे. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल एंड दिस इज फॉर द फाउंडेशन एंड ओलंपिया. दैट मीन्स इट विल बी clearing all your concepts and all your doubts from the basic level to the Olympiad level, right? Now you will be getting comprehensive study material, recorded live and live classes, all right? फिर आपको मिलेगा homework submission का feature and then you will be getting bi-weekly quizzes and then periodic test papers. ये जितने भी आप लोग को features इस package के according मिल रहे हैं, ये सभी के सभी features will help you in the long run. If you really want to study very serious and very in a good way or in a quality way, you can do that. You have to click on buy now, then you will be forwarded on price details page, right? Here you can see the cost is 9,000, but you can write this code CYLIVE. If you write this code, then you will be getting 30% discount. That is 2,700 will be deducted from the 9,000 and now the price will be 6,300. So again, always buy the package and then you can have the options regarding the payment options, I think. You can choose any options in which you are comfortable. And if you have any query regarding the process, like which package you should choose or which thing you would be beneficial for you, you can always call on this number. And you can register a query. Definitely your query will be resolved. All right. If you think that you are very much in advance in your studies and you want to test yourself, then you can also join our test series. You can also apply this code on the test series and then you will be having 30% discount on the test series too. All right. So let's move forward and let's start studying. So take out your books and pens and just promise yourself you will be watching the whole lecture. You will be making proper notes and you will be revising, right? Revising बहुत important है, ठीक है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. ये कुछ होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में आपको दिए थे, है ना? तो हमें इसको क्या करना चाहिए, पहले इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, कर चुके होंगे अब तक तो, ठीक है? सो द थिंग इज़ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पहले वाले जो ड्यूरिंग द लेक्चर हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल एज इट इज़ हम लोग इनको भी करेंगे, ठीक है? चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हमें क्या करना है, 25 kg पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है? नाउ दिस विल हैव 2 पार्ट्स, राइट? तो हमको क्या करना है, पहले kg को ग्राम में करना है एंड देन मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में करना है, ठीक है? तो हमको 2 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है. तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 25 kg को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में, ठीक है? तो लेट्स डू इट. सी वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. और ये कहाँ से आता है, ये जो SI प्रीफिक्सेस हमने वाली टेबल देखी थी, ये उस टेबल से आता है. ऑलराइट, नाउ सी वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ऑलराइट, अगर मुझे 1 kg का वैल्यू पता है तो मैं 25 kg का वैल्यू निकाल सकती हूँ. ऑल आई हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई 25 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? तो आई विल बी डूइंग 25 मल्टीप्लाई with the 1 kg and then I will be doing 25 multiply with the 1000 gram.
आई एम मल्टीप्लाइंग 25 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे 25 इंटू 1 इट विल बिकम 25 अगेन, and 25 into 1000 it will become how much? 25,000 gram. So this is the first part, this is the step 1, we have done it already. Now let's convert meter cube into centimeter cube, right? So see, we know that 1 meter equals to 100 centimeter, right? So this is so much easy, like 1 meter equals to 100 centimeter, and we know that what meter cube holds in itself. मीटर क्यूब में हम लोग ये बात जानते हैं दैट मीटर क्यूब कैन बी रिटन एज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. दिस कैन इजीली बी रिटन, राइट. हम मीटर क्यूब को मीटर इंटू मीटर 3 टाइम्स मीटर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पर 1 मीटर का वैल्यू कितना है? 100 सेंटीमीटर. तो मैं हर एक मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर को रख दूंगी, ठीक है. तो यहाँ पे जो मीटर है उसमें अगेन मैंने क्या किया है? 100 सेंटीमीटर रखा है. फिर जो सेकेंड वाला मीटर है उसमें अगेन 100 सेंटीमीटर. देन थर्ड वाला जो मीटर है उसमें अगेन 100 सेंटीमीटर, ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जीरो हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो हमारे पास 6 जीरो आ गए. सो वी शुड राइट 10 की पावर 6 centimeter cube. Why I write centimeter cube? Because there are 3 centimeters multiplied by each other. See, centimeter into centimeter into centimeter, ठीक है. तो इसीलिए हमने क्या किया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया. अब हमको क्या पता चल गया है, हमको केजी 25 केजी का वैल्यू पता चल चुका है ग्राम में, है ना. और हमको मीटर क्यूब का वैल्यू पता चल चुका है सेंटीमीटर क्यूब में. नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन द फाइनल क्वेश्चन. फाइनल, ठीक है. ये तो हमारा फिर भी कन्वर्जन था. सो लेट्स गो फॉर दी फाइनल वन. और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 kg अपॉन मीटर क्यूब इक्वल्स टू 25 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 25,000 ग्राम. तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 25,000 ग्राम. और मीटर क्यूब को क्या लिखा है, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. तो इट वुड बी 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ कैंसिल इट आउट. देखो ऊपर 3 जीरोज हैं, 3 जीरो, नीचे कितने हैं, 6 जीरो. सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे 3 बचेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है. सो वी आर डूइंग 25 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. इसको और भी अगर हम लिखना चाहें तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चले जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, राइट. तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 25 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यू कैन राइट इट आउट लाइक दिस, ठीक है. सो दिस इज वेरी इजी, डेफिनेटली दिस इज वेरी इजी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है. आप सभी मैच करें कि क्या आपका जो आंसर आया है क्या वो मेरे आंसर से सिमिलर है कि नहीं, ठीक है. और देखें कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 kg. अब नाउ सी, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 3 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और सेकेंड स्क्वायर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बोथ आर द सेम, ठीक है. तो हम लोग को फिर से जो है ट्वाइस स्टेप वाला लेना होगा प्रोसेस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में. सो वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. Now I am multiplying 3 on both sides, ठीक है, because I want to know the value of 3 kg. So I am writing 3 into 1 kg, 3 into 1000 gram, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 kg equals to 3000 ग्राम, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. हमने क्या किया है, 3 kg को कन्वर्ट कर दिया है ग्राम में. एंड हाउ वी डिड दैट, सबसे पहले हमने लिखा 1 kg का वैल्यू ग्राम में कितना होता है, दैट इज 1000 ग्राम. उसके बाद हमने 3 को दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है. जैसे ही हमने किया तो इट वुड बी 3 इंटू 1 kg एंड 3 इंटू 1000 ग्राम. नाउ सी 3 इंटू 1 कितना होता है, 3. सो इट विल बिकम 3 kg. एंड यहाँ पर 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 3000 kg, 3000 ग्राम्स, ठीक है. तो अब हम क्या करें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें. दिस इज आवर सेकेंड स्टेप. तो हम लोग ये बात जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. दैट्स इट, हो गया कन्वर्ट.
वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे 1 मीटर को ही कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर में, सो इट्स डन। ठीक है, अब देखेंगे हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप जो कि हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन वाला स्टेप होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 kg मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, हम 3 kg का वैल्यू रखेंगे, ग्राम्स में कितना हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है 3000 ग्राम्स, सो इट वुड बी 3000 ग्राम्स। ठीक है, और जो मीटर था, जो हमारा ये मीटर था, उसका हमने कैलकुलेट किया 100 सेंटीमीटर, तो इट वुड बी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट नहीं, मतलब करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, बिकॉज दो बोथ आर द सेम यूनिट्स, राइट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, वी विल काउंट ऑल द जीरोज, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 जीरोज, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट 3 into 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मैच करो कि भाई तुम्हारा भी यही आंसर आया था कि नहीं, एंड सी ऑल द मिस्टेक्स यू मे हैव डन। ठीक है, और जिनसे हो गया है उनके लिए बिल्कुल क्लैपिंग करेंगे सभी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली। यहाँ पर भी अगेन हम क्या करेंगे, केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, ठीक है, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, एंड सेकेंड स्क्वायर उसको हम ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। ठीक है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। नाउ लेट्स कन्वर्ट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, अगेन हम इसको लिखने जा रहे हैं। नाउ आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ 4 kg, सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स, तो इट विल बी 4 into 1 kg equals to 4 into 1000 gram. Alright, now it would be become 4 kg equals to 4000 grams. ठीक है, हमारा ये कन्वर्ट हो गया। अब हम कन्वर्ट करते हैं मीटर को सेंटीमीटर में, इट्स सो इजी। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, दैट्स इट, बस कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम अपना फाइनल स्टेप पे चलते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप है, एंड दैट फाइनल स्टेप इज 4 kg डिवाइडेड बाय मीटर एस स्क्वायर। ठीक है, नाउ सी 4 kg को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, दैट इज 4000 ग्राम्स, तो हम उसकी जगह पर लिख देंगे 4000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर को हमने क्या लिखना है 100 सेंटीमीटर, सो लेट्स राइट 100 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड स्क्वायर एज इट इज, तो हमने सेकेंड स्क्वायर एज इट इज रख दिया। ठीक है, नाउ सी ये जो 2 0 है ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, डिनोमिनेटर के 2 0 विद द न्यूमरेटर के 2 0 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ जो बचा वो कौन बचा 40, तो इट वुड बी 40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी शुड कन्वर्ट ऑल द थिंग्स। जब कभी भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन करने को मिले तो आपको क्या करना है, ब्रेक इट इनटू स्टेप्स। अगर आप उसको अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक करेंगे तो इट वुड बी सो मच ईजियर फॉर यू टू कन्वर्ट ऑल द नंबर्स विदाउट एनी मिस्टेक, राइट। सो फर्स्ट आप पहले नोट करो एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो हम आज का लेक्चर स्टडी करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। ठीक है, लेक्चर 3 वी विल बी लर्निंग मेजरमेंट्स ऑफ वेरियस क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास। ठीक है, वी विल बी लर्निंग अबाउट दी डेंसिटी, वॉल्यूम, हम उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है लेंथ को कैसे मेजर करना है। वैसे तो तुम्हारे बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल तो है, राइट, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, स्केल से कैसे मेजर कर सकते हैं, बट स्केल से भी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट करना आना चाहिए। और वो कैसे करेंगे हम लोग, लेट्स सी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखेंगे, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड्स। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के जो 2 एंड्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस पेन, राइट, दिस इज द फर्स्ट एंड, राइट, एंड दिस इज द सेकेंड वन। सो फर्स्ट एंड से सेकेंड एंड तक जितना जो इसका डिस्टेंस है दैट वुड बी इट्स लेंथ, राइट। जैसे ये स्पून, इस स्पून का 1 एंड ये है,
सेकेंड एंड ये है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्पून, राइट। जो जब कभी भी हमें लेंथ की बात करनी होती है तो वी शुड ऑलवेज कंसीडर द लेंथ बिटवीन इट्स एंड्स एंड दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। हम लोग का भी जब हाइट मेजर होता है तो हम लोग भी ऐसे ही मेजर करते हैं फ्रॉम द हेड टू द टो, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना टोटल लेंथ मेजरमेंट करते हैं। दैट्स हाउ वी शुड नो दैट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, right? Now let's see how to measure length using a ruler. You should always do that by सबसे पहले तो स्टेप आपको उसमें लेने चाहिए। फर्स्ट जो है 3 स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी लेंथ मेजर करने के लिए स्केल से। नंबर 1 स्टेप क्या होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्केल, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल स्केल के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस स्पून एंड द स्केल, राइट। तो आप इसमें देखेंगे कि भाई यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ अलोंग रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दैट स्केल ऐसा है और आप ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप इट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्केल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप, ऑलवेज मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। जैसे देखेंगे यहाँ पे जो स्टेप 1 है उसके अंदर आपको क्या करना है, कीप द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्केल, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज द वन एंड ऑफ द स्पून, है ना, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो लेट्स मेजर इट आउट। तो हम लोग को सबसे पहले ये वाला मार्क नोट कर लेना है, द फर्स्ट मार्क, ठीक है। तो हमारा स्टेप 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, नोट करना है, नोट डाउन द फर्स्ट मार्क, ठीक है, और यू कैन से द स्टार्टिंग मार्क, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने स्टार्टिंग मार्क कर लिया है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो उसका एंडिंग मार्क है उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पर जो है ओवरलैप करके एंड हो रही है, राइट। सो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग कितना है, 0। सो हमारा जो स्टार्टिंग मार्क है वो कितना है, 0, है ना। और जो एंडिंग मार्क है जो कि हम अपने स्टेप 3 में लिखेंगे, सो स्टेप 3 वुड बी नोट डाउन दी एंडिंग मार्क, ठीक है। और हमारा एंडिंग मार्क कितना आ रहा है, यू कैन सी दिस इज 4 इंचेस बिकॉज दिस स्केल इज ऑफ इंच, सो इट विल बिकम 4 इंचेस। सो लेट्स राइट हियर 4 इंचेस। अब जब आपको दोनों मार्क्स पता चल गए, आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता चल गया, आपको एंडिंग पॉइंट भी पता चल गया, हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ। नाउ आपको क्या करना है, सिंपली जो लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का दैट वुड बी हाउ मच, फाइनल पॉइंट दैट इज द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडिंग पॉइंट और यू कैन से एंडिंग मार्क माइनस द स्टार्टिंग मार्क दैट वुड बी द लेंथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंडिंग मार्क में से यानी ये जो मार्क है उसमें से जो उसका स्टार्टिंग मार्क है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो व्हाट वी शुड डू व्हाट इज द एंडिंग मार्क, 4 इंचेस। सो लेट्स राइट 4 हियर, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टार्टिंग मार्क दैट इज 0, तो इसका जो लेंथ आ गया दैट वुड बी द 4 इंचेस बिकॉज 4 minus 0 is 4, so it will become 4 inches. So that's how we should measure. हाउ वी शुड डू इट, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को अलॉन्ग द लेंथ रखना है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्केल रखना है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज नोट डाउन द स्टार्टिंग पॉइंट, कि भाई आपको क्या करना है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है वहाँ का मार्क लेना है। नेक्स्ट आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड हो रही है वहाँ का मार्क लेना है, एंड देन यू शुड डू द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, वो ये देखनी है कि नेवर एवर लुक द मार्क फ्रॉम दी अदर साइड्स। आपको क्या करना है, हमेशा जो भी आप मेजर कर रहे हैं, जस्ट लाइक यू आर सीइंग दिस 4, सो यू शुड नॉट सी इट लाइक दिस,
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा अबव से देखना है, व्हाट यू हैव टू डू इज टू अबव। जैसे मैं अगर इस 4 को देखूंगी तो आई वुड सी इट लाइक दिस, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे देखना है, ठीक है, तभी आप एक्यूरेट मेजरमेंट ले पाएंगे, ठीक है। सो दैट शुड बी द प्रिकॉशंस यू शुड टेक। और अगर कभी गलती से तुम्हारे पास टूटा हुआ स्केल हो, देन व्हाट यू डू, आपको क्या करना होगा, तब आपको वहाँ पर उस मार्क से लेंथ को मेजर करना है जिस मार्क जो कि टोटली क्लियर हो, ठीक है। जहाँ से टूटा हुआ है स्केल उसको छोड़ो, लेकिन जो भी मार्क बिल्कुल क्लियरली विजिबल है वहाँ से आप ऑब्जेक्ट को मेजर करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर आपके पास टूटा हुआ स्केल है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर द लेंथ मेजरमेंट, ठीक है। सेकेंड, हम जो सेकेंड थिंग से हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज व्हाट, डिवाइडर। हम लोग डिवाइडर से भी लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सी, जो डिवाइडर होता है इट हैज़ 2 आर्म्स, यू कैन से इट हैज़ 2 आर्म्स, और ये जो 2 आर्म्स होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं, एंड दीज कैन मूव, ठीक है, अलोंग दिस। नाउ सी, आपने डिवाइडर तो देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास के साथ में आता है डिवाइडर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हाउ टू मेजर लेंथ। लेट्स सपोज आपको A और B ये दोनों मेजर करने, ठीक है, द लेंथ बिटवीन दी A एंड B, ठीक है। अब क्या करेंगे आप कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो A पॉइंट है यहाँ पर पहले वाले आर्म का बिल्कुल जो पॉइंटेड एंड है वहाँ रखेंगे, ठीक है, और फिर जो दूसरा आर्म है उसका पॉइंटेड एंड B पर रखेंगे, एंड देन आप इसको बिना डिस्टर्ब किए इसको उठाएंगे, एंड देन यू विल मेजर इट विद दी स्केल। ना फर्स्ट एंड स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सेकेंड एंड एंडिंग पॉइंट हो गया, एंड देन यू शुड सब्ट्रैक्ट एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली डिवाइडर से बिल्कुल लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज कि व्हाट इफ यू गेट अ वेरी कर्व लाइन एंड यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दैट। अगर आपके पास कोई भी कर्व लाइन है एंड यू वांट टू मेजर इट्स लेंथ, यू शुड यूज अ थ्रेड एंड स्केल। हाउ टू डू दैट, देखिए, जैसे इमेजिन कीजिए दिस इज ए एंड दिस इज द कर्व लाइन वी वांट टू मेजर, ठीक है। आपको क्या करना है, इस A और B को हमको मेजर करना है। नाउ आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, ठीक है, बड़ा थ्रेड लो, टाई अ नॉट, एक नॉट बांधो उसमें, एंड जो नॉट होगी उसको A पर रख दो, ठीक है, A के ऊपर रख दो, ठीक है। जैसे आप A के ऊपर रखेंगे उसके बाद पूरी रोप को, जो आपका स्ट्रिंग है, जो आपका थ्रेड है, उसको अलोंग द कर्व उसके ऊपर रखते चलते जाओ, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द नॉट, नॉट को A पर ही रहने दो, एंड देन उसके ऊपर रखते चले जाओ। तो यू शुड डू दैट इसके ऊपर आप ऐसे रखते चले जा रहे हैं अपना थ्रेड, ठीक है। एंड जैसे ही आप B पॉइंट तक पहुंचे, पेन या किसी और चीज से मार्क इट, उस जगह पे मार्क कर लो, ठीक है। तो अब आपके पास उसके बाद जब हम इसे उठाएंगे तो यू विल हैव द लेंथ ऑफ दैट कर्व लाइन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली यूज द स्केल, ठीक है, रूलर यूज कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपने नॉट बांधी थी, जो आपने A पॉइंट पर रखी हुई थी, उसको हम रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और जो फाइनल जो आपने पेन से लगाया हुआ मार्क है B पॉइंट के लिए, वो हम रखेंगे फाइनल, and then we'll calculate by the subtracting. So that's how we can measure the length of a curved line too, using just thread and a scale, ठीक है। So these can be the process. We can measure the length of a curved line using a string. The string is placed along the curved line and its ends are marked on the string, ठीक है। जैसे जैसे कर्व जा रहा है उसके अलोंग हम लोग जो स्ट्रिंग है उसको रखते चले जाएंगे, ठीक है। The length of the string between the marked points is measured with a ruler. तो 2 मार्क हमने किया है between the knot and the pen का जो मार्क हमने किया है, हम उसमें जो लेंथ आएगी that would be the length of the curved line, ठीक है। तो that's how we should measure it accurately. We can measure it accurately, ठीक है। Now let's move on कि भाई अब तुमको ये बताना है how to कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ अ वायर। थिकनेस तो बहुत ही कम होती है, बिकॉज एक सिंपल अगर आप कॉपर वायर भी लेते हैं तो उसका थिकनेस तो बहुत बहुत कम रहता है, राइट। तो हाउ टू डू दैट, हाउ यू शुड मेजर इट, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। व्हाट यू शुड डू इज, आपको क्या करना है, उस थ्रेड को, जो वायर है, कॉपर वायर, लेट्स से कोई भी एल्यूमिनियम वायर, ठीक है, आपको क्या करना है, आपका पेंसिल लेकर उसके ऊपर आपको टाइटली उसको रैप कर देना, ठीक है। आपको इस तरीके से रैप कर देना है कि इनके बीच में कोई भी गैप ना रहे।
जस्ट लाइक दिस, देयर इज नो गैप बिटवीन दी टर्न्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर रैप करना है, करते जाना है और बिल्कुल टाइटली उसको रैप करना है, ठीक है। जब आप पूरे वायर को रैप कर दें तब क्या करना है, यू शुड मेजर द लेंथ। कौन सा लेंथ आपको मेजर करना है, सी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट, सो यू शुड मेजर द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है। आपको इसका पूरा लेंथ मेजर करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसका लेंथ मेजर कर ले, नोट इट डाउन, ठीक है। क्या करना है आपको, लेंथ मेजरमेंट करना है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, कितना आ रहा है। लेट्स से यहाँ पर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज 0, ठीक है। और हमारा फिर कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है आई थिंक इस पॉइंट तक, राइट, इस पॉइंट तक जा रहा है ये। सो दिस इज 0.9, सो लेट्स से दैट द लेंथ, the length of the band, let's consider that this is a band, ठीक है। तो इस बैंड की जो लेंथ होगी, ये पूरा जो लेंथ होगा उसको हम नोट करेंगे एंड दैट भी हमने अभी नोट करा है 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ टर्न्स। आपको क्या करने हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना उनको काउंट करने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, काउंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। कितने हैं, लेट्स से यहाँ पर एक्चुअली में तो मैं नहीं काउंट कर पा रही, बट कैन वी डू दैट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑलमोस्ट 15 है, ठीक है। वी कैन डू दैट। हाँ, तो हम लोग को जो है काउंट करने हैं नंबर ऑफ टर्न्स। सो लेट्स से आई गॉट द नंबर ऑफ टेंस 18, ठीक है। लेट्स से आई गॉट दैट, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, we will be writing the number of turns, ठीक है। the number of turns जो है मैंने लिख दिया, that is 18, alright। अब यहाँ पे अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, उसका लेंथ, उसका थिकनेस कैसे कैलकुलेट करना है। now you should divide it, so you can write the thickness by dividing both the numbers. You should divide the length of the band by the number of turns, so you should divide 0.9 divided by 18, so it should be like 1/2, 1/20. So this is the you can say the length of the object and it should be centimeter. So 1/20 centimeter is the final thickness of the copper wire, ठीक है। That's how you can always calculate, you can always measure the length of the thickness of the wire, any wire you can say that, ठीक है। that should be the metallic one, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका शेप चेंज हो रहा हो। wrap the, now the process or the steps you can take, wrap the wire on the pencil so that it forms a coil, measure the length of the coil using a scale. The thickness of the wire can be found by dividing the length of the coil by the number of turns. How you should find the thickness, आपको क्या करना है, length of the टोटल कॉइल, जो टोटल कॉइल है, टोटल बैंड जो आपको मिला है उसका लेंथ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने आपने रैप किए हैं नंबर ऑफ टर्न्स उससे डिवाइड कर देना है, देन यू विल बी गेटिंग द थिकनेस ऑफ द कॉपर वायर, ठीक है। तो आप इसे फटाफट से नोट करें। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, वॉल्यूम होता है जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कवर अप करती है, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम। जस्ट लाइक दिस पेन, ये पेन पूरे स्पेस में, ठीक है, दिस पूरे जो है हमारा आसपास का पूरा स्पेस है, ठीक है, इस स्पेस के अंदर, ठीक है, ये कितना ये स्पेस कवर अप करती है, दैट वुड बी इट्स वॉल्यूम। आपके सामने आपका बॉटल अगर रखा हुआ होगा, कोई भी वेस अगर रखा होगा, कोई भी पेंसिल स्टैंड अगर रखा होगा, तो वो जितना स्पेस कवर अप करते हैं दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी यू कैन से बॉडी जितना स्पेस कवर अप करती है दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। नाउ सी, आपको देखना है the amount of space occupied by an object is its volume, ठीक है। जितना amount of space cover up करते हैं that would be its
वॉल्यूम, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द क्यूबिक मीटर, हमने कल ही सीखा था। सी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम इज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर, दैट कैन बी रिटन एज मीटर की पावर 3। ठीक है, देखेंगे अब जब हम लोगों ने क्या देखा है कि हम किसी सॉलिड का जब कभी भी कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम, तो हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करते हैं, लाइक मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर इंटू अनदर मीटर, तो दैट वुड बी मीटर क्यूब, राइट। लेकिन अगर कोई लिक्विड हुआ, जस्ट लाइक वाटर, जस्ट लाइक मिल्क, आपको मिल्कमैन आता है तो वो क्या बोलता है 3 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, तो ये जो लीटर यूनिट है ये भी वॉल्यूम की यूनिट है, लेकिन ये लिक्विड्स के लिए यूज होती है। ठीक है, सो सी जो लिक्विड्स हैं जो कि हम लोग रोज हम लोग जो मेजर करते हैं, यू कैन सी 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, जो कि उनका यूनिट है, किसका, वॉल्यूम का यूनिट है, लेकिन फॉर द लिक्विड्स ओनली। ठीक है, नाउ सी जब कभी भी हमें क्या करना है, सॉलिड का वॉल्यूम और लिक्विड्स का वॉल्यूम को क्या करना है, एक दूसरे में कंपेयर करना है, एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, सो वी शुड यूज दिस फॉर्मूला 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे कन्वर्जन जो हम कर सकते हैं, यू कैन से 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, हमने क्या किया, इस 1000 को नीचे लेके चले गए, डिनोमिनेटर में लेके चले गए। ठीक है, नाउ इट बिकम्स 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो यू कैन ऑलवेज राइट देम, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलेस को रिमेंबर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सी अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो, जस्ट लाइक अ क्यूब, जस्ट लाइक अ सिलेंडर, तो आप कैसे उसको वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए सच ऑब्जेक्ट जो कि रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रेगुलर शेप्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग को जैसे क्यूब का वॉल्यूम मेजर करना होता है, कभी हमको सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करना होता है, तो हाउ वी शुड डू इट, वी शुड डू इट बाय द फॉर्मूला। सो लेट मी टेल यू द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ into breadth into height, that is the volume of a cube। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या शेप होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दिस शेप इज नोन एज द क्यूबॉइड। ठीक है, सो वी कैन से इट्स अ रेक्टेंगल शेप्ड लाइक एंड इट हैज सम हाइट, यू कैन से दैट। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यू शुड गो विद पाई रेडियस, इसका स्क्वायर एंड देन हाइट। ठीक है, व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7। ठीक है, दैट इज पाई, इसका वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो रेडियस है ना, इसका रेडियस मतलब ये जो सर्कुलर सरफेस है उसके सेंटर पॉइंट से उसके एंड तक जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, सेंटर पॉइंट से एंड तक जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। तो आपको क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर करना है एंड देन हाइट। हाइट क्या होगा, ये जो सिलेंडर का पूरा हाइट है, दैट इज कॉल्ड हाइट, तो ये जो हाइट होगी इससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड फाइनली वी आर एबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रेगुलर शेप्स, राइट। तो आप फटाफट से इन तीनों फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए, ये मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं टू दी नेक्स्ट। ठीक है, नाउ सी दिस इज कॉल्ड अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है ये तब काम आता है जब हमें क्या करना होता है, कोई भी लिक्विड का एक्यूरेट मेजरमेंट करना होता है, जैसे कि जब कभी भी जो केमिस्ट होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं जो कि बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट लेना होता है। ठीक है,
बिल्कुल एक्यूरेट। तो उस एक्यूरेसी को बरकरार रखने के लिए कि भाई उनको बिल्कुल सही मेजरमेंट लेना जितना चाहिए, अगर उनको 0.5 लीटर चाहिए तो उनको 0.5 लीटर ही चाहिए, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक और इतना ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेते हैं। तो उसके लिए लिक्विड्स का एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए वी यूज ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्यों? ये एक ग्लास का बना सिलेंडर होता है एंड इसके ऊपर क्या होता है, मार्किंग्स होते हैं। यू कैन सी दीज मार्किंग्स 90, 80, 70, 60 ये मार्किंग्स होते हैं, ठीक है। तो हम इनकी हेल्प से बिल्कुल ये पता कर सकते हैं कि जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सी, इन द लैबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड नीड्स टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करना होता है उन लोगों को। सो अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज। इसको हम मेजरिंग सिलेंडर भी बोल देते हैं, इसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोल देते हैं, ठीक है। लेट मी राइट इट्स नेम, ठीक है। इसको हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोल देते हैं या फिर इसको हम मेजरिंग सिलेंडर भी बोल देते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन मेजरिंग टू, ठीक है। तो हम ये दोनों नाम इसको लिख सकते हैं। नाउ सी, अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ सिलेंडर ग्लास कंटेनर दैट हैज मार्किंग ग्रेजुएशंस ऑन इट। तो ये एक ग्लास का बना हुआ सिलेंडर होता है, ठीक है। एंड इसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं, कुछ ग्रेजुएशंस होते हैं। ग्रेजुएशंस आर नोन एज द मार्किंग्स, ठीक है। दोनों वर्ड एक ही के लिए हैं। नाउ सी, ये अलग अलग रेंजेस में आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में आते हैं। आपको जिस भी आपको स्मॉलर लेवल का चाहिए, लाइक आपको मिलीलीटर्स के अगर मेजर करना होगा लिक्विड, सो यू कैन यूज द स्मॉलर वन। और अगर आपको बिगर वैल्यूज चाहिए तो यू कैन यूज द बिगर वन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। नाउ सी, आपको क्या तीन इंपॉर्टेंट चीजें रिमेंबर करनी है, वो ये 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, यू शुड रिमेंबर दिस कन्वर्जन, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यू शुड यूज दिस कन्वर्जन। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 milliliter cube, that should be very much learned, so note it down very fast. चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नाउ सी, अगर हमने अभी तक देखा है कि हम अगर किसी भी रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहें उसका वॉल्यूम, तो इट वुड बी इजी, वी कैन यूज द फॉर्मूला। कोई लिक्विड हुआ, वी कैन यूज द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। बट एक इरेगुलर शेप को हम कैसे मेजर करेंगे? इरेगुलर शेप का मतलब जैसे का किसी स्टोन का, ठीक है। आप कोई भी स्टोन बाहर से लेकर आ जाइए, तो वो स्टोन का शेप बहुत ही इरेगुलर होगा, ठीक है। इरेगुलर मतलब कैसा भी शेप होगा, टेढ़ा मेढ़ा वेढ़ा कैसा भी शेप होगा, ठीक है। तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे, किस तरीके से पता करेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। आप फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, राइट। सो हम एक ट्रिक यूज करते हैं जो कि हम मेजरिंग सिलेंडर से करेंगे। क्या ट्रिक है वो भाई? हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके अंदर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है। और हम इतना पानी डालेंगे कि वो जो स्टोन है वो डूब जाए इसके पानी के अंदर, ठीक है। अब हमने पहले तो क्या किया, पानी भर लिया, ठीक है। और हमने फिर मार्क कर लिया कि पानी का जो लेवल है वो कितना है, ठीक है। कितना वॉल्यूम है पानी का हमने मार्क कर लिया। सो आप यहाँ देख सकते हैं इट इज 200, राइट। सो पहले हम मार्क कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो जो हमारा इनिशियल वैल्यू है किसका, इनिशियल वॉल्यूम जो है वाटर का वो कितना है, राइट नाउ 200, ठीक है। और ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। सो 200 सेंटीमीटर क्यूब राइट नाउ, इनिशियल है, ठीक है। ये स्टार्टिंग फेस है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर पत्थर डाल दिया, जो स्टोन हम लेकर आए थे वो हमने इसमें डाल दिया। जैसे हमने स्टोन इसके अंदर डाला, पानी का लेवल ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया एंड इट कम्स टू दी 300। अब ये 300 शो कर रहा है। सो जो फाइनल वैल्यू है, जो फाइनल वॉल्यूम है वाटर का, दैट इज हाउ मच, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन इन इट, कब कितना हो गया है, 300 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, ठीक है। नाउ फॉर्मूला क्या है, ये जो वॉल्यूम, ये जो पत्थर का जो स्टोन का वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू डू दैट, वी शुड यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। वी शुड यूज दिस फॉर्मूला। नाउ सी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या आई थी, 300। सो वी शुड राइट 300,
ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्टोन, ठीक है। तो दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब माइनस इनिशियल, कितना आया था इनिशियल, इनिशियल हमारा आया था 200, है ना, तो इट वुड बी 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब जो स्टोन का वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे किया, 300 माइनस 200, so we get 100, so that is 100 सेंटीमीटर क्यूब is the volume of the stone, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इजीली किसी भी इरेगुलर शेप्ड बॉडी का वॉल्यूम मेजरमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली। नाउ सी यू कैन राइट डाउन द स्टेप्स। pour enough water in a graduated cylinder, mark the level of water, this will be initial value, ठीक है, मार्क करना है ताकि वो क्या बन जाए, उसका इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू बन जाए। नाउ ड्रॉप द इरेगुलर शेप्ड सॉलिड इनटू द सिलेंडर, अब हमने क्या किया, स्टोन को डाल दिया, मार्क द लेवल ऑफ वाटर, दिस विल बी फाइनल वैल्यू, ठीक है, दैट वुड बी द फाइनल वैल्यू। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, हम वो करेंगे। नाउ सी, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, डेंसिटी बहुत बार यूज हो जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके पहले वाले लेक्चर में ही आपको बताया था डेंसिटी का फॉर्मूला, है ना। तो देखेंगे जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही कम हो, बहुत ही कम, लाइक कोई लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई लाइट वेट ऑब्जेक्ट है एंड इट कवर अप very much space, all right, and when it covers up very much space, then the density of that object would be so much less, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा, कॉटन, कॉटन क्या होता है, बहुत ही फ्लफी होता है ना, एंड इट कवर अप लॉट ऑफ स्पेस, मतलब इट्स वेरी लाइट, उसका वेट बहुत ही कम होता है, उसका मास बहुत ही कम होता है, बट इट कवर अप वेरी मच स्पेस, सो दैट्स वाई उसका जो डेंसिटी होगा दैट इज वेरी मच लो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर पॉजेस्ड बाय द बॉडी कवर्स हाउ मच स्पेस, दैट मीन जितना उसका मास है, बॉडी का मास है, वो कितना स्पेस यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज द डेंसिटी, ठीक है। सो इट्स फॉर्मूला इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो दैट मीन्स आपको क्या करना है, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो अगर आपने ये किया, ये डिवाइड किया, मास अपॉन वॉल्यूम किया, तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पर अभी हमने कॉटन का एग्जाम्पल लिया, अ बॉडी हैविंग लेस मास एंड टेक्स अप लॉट्स ऑफ स्पेस, दैट मीन्स द बॉडी हैज लो डेंसिटी जस्ट लाइक कॉटन, राइट। लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज भी होती हैं जो बहुत हैवी होती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम स्पेस को कवर अप करती है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन, ठीक है। स्टोन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है एंड इट कवर अप्स वेरी मच लेस स्पेस अकॉर्डिंग टू द कॉटन, राइट। सो दैट्स वाई उसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, बिकॉज उसका मास तो कम है, मास तो एक्चुअली ज़्यादा है एंड उसका वॉल्यूम कम है, उसका लॉट जो स्पेस वो कवर अप कर रहा है वो बहुत ही कम है, दैट्स वाई उसका जो डेंसिटी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। A body having more mass and takes less space, that means the body has high density, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, just like a stone. So note it down. All right, now see, these are the things, these are the totally measurement. Now let's talk about the measurement of time. टाइम को कैसे मेजर करें, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपल पेंडुलम को यूज किया। नाउ यू विल बी सेइंग व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसके अंदर हम एक मेटल की बॉल को एक थ्रेड से क्या कर देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं एंड हमारा जो थ्रेड का एंड है उसको स्टेबल कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस इज फिक्स, ठीक है। नाउ इट कैन नॉट मूव,
लेकिन जो थ्रेड है उसको हम लेकर जाएंगे, जो बॉल है उसको पीछे लेकर जाएंगे एंड वी ड्रॉप इट। जैसे ही हमने उसको ड्रॉप किया, जो बॉल है आगे गई, वो वापस आई, देन इट गोड फॉरवर्ड, देन बैकवर्ड, देन अगेन फॉरवर्ड। इस तरीके से वो क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। कौन करेगी, जो मेटालिक की बॉल है वो करेगी, जस्ट लाइक दिस, दिस इज द सर्कुलर बॉल, ठीक है, और टू एंड फ्रो मूव करते रहती है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम इज अ स्मॉल स्फीयर नोन एज बॉब हैंगिंग थ्रू अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इट डज अ टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। नाउ हमने यहाँ पे क्या किया, लेट्स से कि हमने इस बॉल को ए तक लेकर गए, पहले ए तक लेकर गए एंड वी जस्ट ड्रॉप इट, हमने उसको फिर छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। ये ए पर था, जैसे ही ए से बी होता हुआ ये सी तक जाएगा, ये एग्जैक्ट हाइट को अटेन करेगा। दैट मीन्स ए को जितना हाइट अटेन किया है, मतलब ए कितना ऊपर है, इस लाइन से अगर एक्स डिस्टेंस ऊपर है तो सी पर भी क्या होगा, एक्स डिस्टेंस ही ऊपर रहेगा। दैट मीन्स ये जो ए है और ये जो सी है, दोनों तब जो दोनों पॉइंट्स पर जो बॉल है दैट वुड बी एट द सेम हाइट, ठीक है। Let it start from A, it will reach at the point at same height as A on opposite side, that is C, ठीक है। वो क्या करेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हाइट पर जाएगी। A जितना ऊपर था ना, C पर भी वहां पर दूसरे तरफ जाकर भी वो उतना ही ऊपर आएगी। दैट मीन्स वो इससे ऊपर नहीं जाएगी बिकॉज एनर्जी विल बी द सेम, राइट। सो देखो यहाँ पर जितने हाइट उसने लिया है, C पॉइंट पर भी उसने उतना ही हाइट लिया है, ठीक है। सो दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज कि जितना ज़्यादा हाइट पर वो जाएगी एक तरफ, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट करेगी, दूसरे तरफ मूव करते वक्त भी वो उतनी ही हाइट पर जाएगी, ठीक है। दैट शुड बी द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी द टाइम व्हेन इट अगेन रीचेज एट ए। दैट मीन्स अब अगर उसने अपना मूवमेंट ए से स्टार्ट किया एंड इट मूव टू बी, then move to C, then move to again B and then again A, जब finally वो A पर पहुंचेगी वापस, that would be the time period, that means इतना टाइम, मतलब पूरा क्रॉस करने तक, A से लेके C तक जाने तक, C से वापस A तक आने तक, पूरा जब उसने वन पूरा ऑसिलेशन किया, उतने टाइम, मतलब उस ऑसिलेशन को करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द लार्जर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द लार्जर द टाइम पीरियड। जितना ज्यादा लंबा स्ट्रिंग होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा इसे ए पॉइंट तक वापस आने में, ठीक है। तो जितना ज्यादा छोटा इसका स्ट्रिंग होगा वो उतनी जल्दी ए पर वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लंबा स्ट्रिंग होगा, कोई लॉन्ग स्ट्रिंग यूज करेंगे तो वो ए पर आने में थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। नेक्स्ट, the time taken by Bob from A to B is equal to the time taken by it to move from B to C and vice versa in the return journey. That means let's say कि भाई A to B तक आने में उसको 1 सेकेंड लगा, ठीक है, तो वो B to C तक जाने में भी 1 सेकेंड ही लेगा, फिर वो C to B जाने में भी 1 सेकेंड लेगा और B to वापस A जाने में भी 1 सेकेंड लेगा। तो टोटल सेकेंड्स कितने हुए वन ऑसिलेशन में, 1, ठीक है, ये 1 2 3 4 सेकेंड्स हुए। दैट मीन्स टाइम पीरियड इसका 4 सेकेंड है, लेकिन ये हर एक पॉइंट में इक्वली डिवाइड करेगा अपने टाइम को, ठीक है। तो ये अगर आपको पता करना है कि ए टू बी में जाने पे उसको कितना टाइम लगा, डिवाइड 4 जो सेकेंड्स हैं उसको डिवाइड करो 4 से, यू विल बी गेटिंग दैट मच टाइम, ठीक है। तो दैट्स हाउ जो सिंपल पेंडुलम है उससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये पता कर सकते हैं कि लेंथ पे डिपेंड होता है टाइम पीरियड, जितना ज़्यादा लंबा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा वापस उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली उसको सेम हाइट पे जाना है, जहाँ से जितने हाइट से वो स्टार्ट करेगी अपोजिट साइड में भी उसको उतने ही हाइट पे जाना है, ठीक है। वो हमेशा इन लॉज को फॉलो करता है, कौन, बॉब, मेटालिक बॉब, ठीक है। सो दिस वाज द लेक्चर 3 एंड हम लेक्चर 4 में स्केलर्स एंड वेक्टर्स को स्टडी आउट करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज इट। आपको अगेन वो 3 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उन्हें ट्राई करना है, इस बार बिना गलती किए करना है, ठीक है। एंड डू स्टार्टेड एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। दैट्स इट। आप रिवाइज करो, आप होमवर्क करो,
So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and always click on the bell icon so that you will be notified when we will be live again. Thank you so much.